آقا کیا ارشاد فرماتے ہیں، اذا جاء رمضان فتحت ابواب الجنان، جب ماہ رمضان کا مہینہ آتا ہے اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے جنت کے دروازے کھول دیتا ہے۔ اور جنت کے دروازے کیوں کھولے جاتے؟ جیسے حصول جنت کے لیے نماز پڑھنا لازم ہے، ایسے ہی حصول جنت کے لیے روزہ رکھنا بھی لازم ہے۔ جیسے جنت حاصل کرنے کے لیے نماز پڑھنا فرض ہے، ایسے ہی جنت حاصل کرنے کے لیے روزہ رکھنا بھی فرض ہے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں اذا جاء رمضان فتحت ابواب الجنان، جب ماہ رمضان آتا ہے اللہ تعالیٰ جنت کے دروازے کھول دیتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کو خفیہ عبادت بہت پسند ہے۔ ادعوا ربکم تضرعا وخفیہ، عاجزی اور انکساری کے ساتھ اور خفیہ طور پر اپنے رب کے حضور کھڑے ہو جاؤ، اپنے حضور کو مناؤ، یعنی اپنے رب کو مناؤ، اپنے رب کی عبادت کرو۔ روزہ بھی ایک خفیہ عبادت ہے، چھپی عبادت ہے۔ تو میں حدیث پاک پڑھ رہا تھا اذا جاء رمضان فتحت ابواب الجنان، آقا فرماتے ہیں جب رمضان کا مہینہ آتا ہے تو اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے جنت کے دروازے کھول دیتا ہے۔ وَغُلِقَتْ ابواب النیران، اور جہنم کے سارے دروازوں کو بند کر دیتا ہے۔ وَسِلْسِلَةِ الشَّيَاطِينِ، اور شیاطین کو زنجیروں میں جکڑ دیتا ہے۔ یہ ماہ رمضان کا خاص فضل ہے جو اللہ تعالیٰ اتنے فضل و کرم سے اپنے بندے مومن کو نواز رہا ہے۔ یہ ماہ رمضان کی آمد کی برکت ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے اپنے بندے مومن کو نواز رہا ہے۔ یہ تین جملے یہ ہمارے دل کو بڑا خوش کر دیتے، مسرت سے جگمگا اٹھتا ہے بندے مومن۔ جنت کے دروازے کھولے جا رہے ہیں، جہنم کے بند کیے جا رہے ہیں، اور شیاطین کو زنجیروں میں جکڑا جا رہا ہے۔ یا اللہ تعالیٰ کی طرف سے پابندی ہو گئی۔ اب بندے مومن کی پابندی کیا ہوگی؟ اللہ تعالیٰ کے بندے نے اپنے تعلق سے کیا پابندی کرنی ہے یہ بخوبی بندے مومن جانتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے شیاطین کو زنجیروں میں جکڑ دیا، جہنم کے دروازے بند کر دیے، جنت کے دروازے کھول دیے۔ ظاہر سی بات ہے، حدیث پاک میں آیا ہے لو یعلم العباد ما فی رمضان وہمت امتی ان یکون رمضان سنتا کلھا۔ آقا ارشاد فرماتے ہیں اگر اللہ کے بندے کو، اللہ کے بندوں کو اگر یہ پتا چل جائے کہ ماہ رمضان میں کتنا ثواب ہے تو ان یکون رمضان سنتا کلھا، تو پتا چلنے کے بعد وہ ایک مہینے کے روزے نہیں رکھیں گے بلکہ کہیں گے ہمیں پورے سال کے روزہ رکھنے کی اجازت دی جائے۔ ان یکون سنتا کلھا، اگر اللہ کے بندوں کو پتا چل جائے کہ ماہ رمضان میں کتنا ثواب ہے، ما فی ھذا رمضان، ماہ رمضان میں کتنا ثواب ملتا ہے، اللہ کتنا برکتوں سے نوازتا ہے، اپنی نعمتوں سے، اگر یہ پتا چل جائے سنتن کلھا، پورے سال کہیں گے، ایک مہینے کے روزے نہیں، پورے سال کے روزے ہونے چاہیے۔ اس لیے اللہ کے رسول ایک جگہ ارشاد فرماتے ہیں الصوم
ली वाना अजजी बिही, मैंने हर अज्र का बदला देने के लिए फरिश्तों को मुकर्रर कर दिया। लेकिन रोजे के ताल्लुक से फरमाया अस्सौमु ली वाना अजजी बिही, जो बंदा मेरी रजा के लिए रोजा रखता है उसको फरिश्तों को मुकर्रर नहीं किया अज्र देने के लिए, उसका अज्र खुद उसका रब अता फरमाएगा। अब बंदे मोमिन अल्लाह का अगर कुर्ब चाहेगा तो यकीनी तौर पर जान ले वो कभी भी इस बरकत से महरूम नहीं होगा, इस नेमत से दूरी इख्तियार नहीं करेगा। यहां तरगीब रोजा रखने की जा रही है, यहां तालीम रोजा की अहमियत दी जा रही है। अस्सौमु ली वाना अजजी बिही, जो मेरी रजा के लिए मुझे खुश करने के लिए रोजा रखता है, वाना अजजी बिही, अल्लाह ताला खुद उस बंदे मोमिन को अजर अता फरमाता है। अब अल्लाह कितना अता फरमाता है ये वो जाने, इसलिए हुजूर ने हदीस पाक में वजाहत फरमाई इस जुमले की कि बंदे मोमिन को पता चल जाए माह रमजान में कितना सवाब है तो वो तमन्ना करेगा कि पूरे साल के रोजा रखने की इजाजत हो। यानी उस हदीस की तफसीर खुद मुस्तफा दूसरी हदीस से बयान फरमा रहे हैं। हदीस पाक में एक आया है, अला वक़द अज़न्नुकुम वल्लाहि शहरन अज़ीमतन व हरमतन व बसता अलल मुमिनीन। आका इरशाद फरमाते हैं, लोगों को आगाह कर दो, एक महीना बड़ा साया करम रखने वाला है और वो महीना ईमान रखने वालों पर रहमत करम वसी फरमा देता है। अला वक़द अज़न्नुकुम वल्लाहि शहरतन अज़ीमतन व हरमतन व बसत अलल मोमिनीन, कि तमाम लोगों को पैगाम दो कि एक ऐसा महीना बड़ा अजमत वाला साये करम के साथ आने वाला है कि उसकी हुर्मत, उसकी बरकत ईमान रखने वालों पर नाजिल होने वाली है। शहरम व अव्वलुहु रहमतन, वो महीने में पहला अशरा रहमत का होता है, व अवसता मगफिरतन, और दूसरा अशरा मगफिरत का होता है, व आखिरुहु निजातन नार, और आखिरी अशरा जहन्नम से आजादी का होता है। अल्लाह ताला जहन्नम से आजाद फरमाता है। तो पता क्या चला? पता ये चला माह रमजान में अल्लाह की रहमतें भी नाजिल होती है, अल्लाह ताला बख्शिश भी फरमाता है, अल्लाह ताला गुनाहगारों को जो है बख्श देता है और जहन्नम से आजाद भी फरमा देता है। अल्लाह ताला का कितना फजलो करम माह रमजान में होता है, इन तमाम हदीस करीमा से हमें मालूम हो रहा है। और एक हदीस पाक मुझे याद आती है, आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, हजरत अब्दुल रहमान बिन औफ रदियल्लाहु ताला अन्हु जलीलुल कद्र साहबी रसूल, आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में आए और अर्ज गुजार हुए, दरियाफ्त किया, या रसूल अल्लाह, माह रमजान में सबसे बेहतरीन वजीफा कौन सा होगा? तो मेरे आका ने इरशाद फरमाया, मन क़रा आयतल कुरान फी यौमिन व लैलतिन मिन शहर रमजान। हजरत अब्दुल रहमान बिन औफ मेरे आका से पूछ रहे, कौन सा वजीफा बेहतरीन रमजान में होगा? इसी तालीम को लेते हुए आप भी पूछ लिया करो इमाम साहब से, ऐ इमाम साहब, रोजा रखना बेहतरीन कौन सा तरीका होगा? गुनाहों से बचा जाए कि नहीं बचा जाए? हमें दूसरी बातों से बचना चाहिए कि नहीं बचना चाहिए? रोजों के मसाइल पूछने चाहिए कि नहीं पूछने चाहिए? अब्दुल रहमान बिन औफ जलीलुल कद्र साहबी हुजूर से पूछे, या रसूल अल्लाह, कौन सा वजीफा
बेहतरीन माह रमजान में होता है। हालांकि तमाम सहाबा हुजूर की सोहबत में रहने वाले, वो तो हुजूर की सोहबत ही उनके लिए काफी होती, लेकिन तालीम मांगना ये इस बात की दलील है कि उम्मत, हुजूर की उम्मत को बार बार दीन के मसाइल पूछने चाहिए। रोजे के ताल्लुक से हो या सहरी के ताल्लुक से हो, चाहे अफ्तारी के ताल्लुक से हो या समाज के या माशरे के मसाइल हो, सब पूछने चाहिए। माह रमजान इतनी बरकत वाला महीना है, इसमें दकीक मसाइल भी पाए जाते हैं। आपने देखा नहीं, बहुत इस्लाम की बेटियों को ऐसा दिन भी आता है जिसमें रोजा रखने की इजाजत नहीं, लेकिन खवातीन को ऐसा लगता है कि वो दिन गुजर जाएंगे तो रोजा माफ हो जाएगा। नहीं, माह रमजान एक ऐसा महीना है जिसमें रोजा माफ नहीं होता। अगर रोजा छोड़ भी दिया जाए तो उसकी बाद में कज़ा होती है। ये मसाइल इस्लाम की बेटियों को मालूम होने चाहिए। जब ये हमारे यहाँ पर जब दर्स दिया जाता है, जब इसका इल्म बढ़ता चला गया तो पता चला कि लोग घरों में महरूम है इन मसाइल से। तो लिहाजा अब्दुर्रहमान बिन औफ साहबी रसूल है और हुजूर से पूछे रमजान के महीने में कौन सा वजीफा बेहतरीन हमारे लिए होगा। मेरे आका ने इरशाद फरमाया, मन क़रा आयतल कुरान फी यौमिन व लैलतिन मिन शहरी रमजान। कहते हैं अब्दुर्रहमान बिन औफ, तुम रमजान के महीने में कुरान पढ़ा करो। मन क़रा आयतन मिनल कुरान, कुरान की एक आयत ही पढ़ लिया करो, दिन में या रात में से, दिन में या रात में, यानी रमजान के महीने में कुरान की एक आयत पढ़ा करो। आगे अल्लाह के रसूल इरशाद फरमाते हैं, फलहु बिकुल्ली हरफिन मिनहा अजरु शहीद। मेरे आका इरशाद फरमाते हैं, उस आयत के एक एक हर्फ का बदला ये अल्लाह देता है, एक शहीद का सवाब मिलता है। फलहु बिकुल्ली हरफिन मिनहा अजरु शहीद। क्या कह रहे हैं मेरे आका अब्दुर्रहमान बिन औफ साहबी रसूल से, कुरान की एक आयत पढ़ा करो, दिन में या रात में से कोई भी, या रात में पढ़ो या दिन में पढ़ो, मुतलकन जब चाहो जब पढ़ो। वैसे भी तुमने फजीलत सुन रखी होगी, यानी कुरान का एक हर्फ का सवाब 10 नेकियां मिल जाती है, एक हर्फ पर 10 नेकियां, है ना, ये तो सब सुन रखा है। अब जरा सुने, माह रमजान में रात और दिन में कुरान की एक आयत पढ़ोगे, वलहु बिकुल्ली हरफिन मिनहा, उस आयत के एक एक हर्फ का बदला ये होगा कि एक शहीद का सवाब रमजान के महीने में कुरान का हर्फ पढ़ने वाले को मिल जाएगा। अब जरा यहां से अहमियत मालूम हो रही है, और जरा समझिएगा, अब शहीद कौन होता है इसको भी समझ लीजिएगा। क्या शहीद ये कौन होता है और शहीद का मकाम क्या है? अरे साहब, जाहिर सी बात है, शहीद वो है जो कल कयामत के दिन हुजूर की उम्मत है, यानी जो गुनाहों की वजह से जो जहन्नम की तरफ जाती होगी, लेकिन शहीदों पर रहमत बरसाई जाएगी। और यही शहीद जो है, शहीदों की जमात उनकी शफाअत करती नजर आएगी। ये शहीद ऐसे ही नहीं है, इसलिए कहा गया है ये अल्लाह की रजा के लिए शहादत देते हैं। जब ये निकलते हैं तो अल्लाह की रजा के लिए निकलते हैं, नफसानी ख्वाहिशात को मार देते हैं। सिर्फ और सिर्फ इनका जीना मरना सब अल्लाह की रजा के लिए रहता है। अरे एक शहीद का मकाम क्या है? जब ये शहादत के मकाम पर जाते हैं, जब इनके रग से खून निकलता है, खून नीचे गिरने से पहले अल्लाह ताला अपने दीदार से इनको शहादत बख्श देता है। यानी दुनिया में ही इनको अल्लाह ताला खून गिरने से पहले ही अपने दीदार से मुशर्रफ कर देता है। अब जरा समझ चाहिए, ऐसे ही हूबहू जो कुरान की तिलावत रमजान के महीने में करता है, उसी शहीद की तरह तिलावत कलामुल्लाह करने वालों को अजर अता फरमा देता है। कितनी अहमियत है माह रमजान की। माह रमजान की कदर कितनी करनी चाहिए, माह रमजान की अहमियत हमको कितनी जाननी चाहिए। ये माह रमजान हमारे लिए तो है, किसके लिए है? माह रमजान हमारे लिए है। माह रमजान की अहमियत जानो। जब आका करीम ने अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से जब कह दिया, वही मकाम पर एक अराबी वहीं पर बैठे हुए थे और आका से जैसे कहते हुए सुना, यानी कुरान की एक आयत पढ़ लो और इतना सवाब मिलेगा। अराबी थे,
यानी ध्याती थे, ध्याती अल्लाह के रसूल की बारगाह में ये भी सहाबी थे। अब ध्याती का मतलब ये होता है यानी ये कुरान पढ़े हुए नहीं थे। अब्दुर्रहमान बिन औफ ये कुरान पढ़े हुए थे और हुजूर कुरान की अहमियत माह रमजान में बतला रहे थे, माह रमजान का वजीफा बतला रहे थे। अब वहीं पर एक अराबी साहबी रसूल थे यानी जो कुरान पढ़े हुए नहीं थे और हुजूर से अर्ज गुजार हुए, या रसूल अल्लाह, यानी रोने लगे। रावियों ने बयान किया कि रोने लगे सुनने के बाद और रोने की वजह पूछी। हुजूर ने पूछा तुम क्यों रो रहे हो, किस लिए रो रहे हो? अब रावी साहबी रसूल कहते हैं या रसूल अल्लाह, आए तो कुरान पढ़ने वाले अजर कमा लेंगे, मैंने तो कुरान नहीं पढ़ा है, अब अजर हम कैसे कमाएंगे? अब देखिएगा कुरान एक तो होता है दर्स में पढ़ना और उसको सीख जाना, लेकिन तुमने बहुत ऐसे लोग होंगे जिन्होंने कुरान नहीं पढ़ा होगा लेकिन फिर भी कुल अल्लाह की सूरत याद होगी, फिर भी सूरह फलक याद होगी, फिर भी सूरह नास याद होगी, फिर भी सूरह फातिहा याद होगी। लेकिन ऐसे ही वो सहाबी रसूल थे जिन्होंने कुरान नहीं पढ़ा था लेकिन इसी अंदाज से उनको कुछ सूरतें याद थी। मेरे आका करीम ने आगे इरशाद फरमाया रोने को पूछने के बाद, मा मिन अब्दिन क़रअ कुल हुवल्लाहु अहद मर्रतन वाहिदतन, मेरे आका ने इरशाद फरमाया माह रमजान में अगर कोई कुरान पढ़ा हुआ नहीं है, अगर वो बंदे मोमिन सिर्फ और सिर्फ कुल अल्लाह की एक आयत पढ़ लेगा और अल्लाह ताला के फजलो करम से अगर एक आयत एक मर्तबा पढ़ेगा, बनल्लाहु लहू जन्ना, उसके लिए जन्नत में घर बना दिया जाएगा और सिद्दतन व खमसीना मदीनतन, और 65 उसके लिए जन्नत में शहर बना दिए जाएंगे। आका करीम की रहमत बरस रही है, खुदा का फजल बरस रहा है, खुदा की रहमतें बरस रही है। कहते हैं कुरान में नहीं पढ़ा हुआ, कहा कुरान की यानी कुल अल्लाह की सूरत एक मर्तबा पढ़ लो, फिर कहा बनल्लाहु लहू फिल जन्ना, उसके लिए जन्नत में घर बनाए जाते हैं, जन्नत में घर बनाया जाता है। फिर कहा सिद्दतन व खमसीना मदीनतन, उसके लिए जो है जन्नत में 65 शहर बनाए जाते हैं। शारीन हदीस फरमाते हैं 65 जन्नत में शहर बनाए जाते हैं और उसी शहरों में 65 महल्लात बनाए जाते हैं और उन्हीं महल्लात में हर महल्ले में 65 मकानात बनाए जाते हैं। और फिर फरमाया है कि 65 महल्लात में 65 जो है हूरों के तख्त हुआ करते हैं और वो हूरे बाद मरने के उनका इस्तेकबाल करती है। और एक हदीस पाक में आया इसी की तशरीह बयान करते हुए कि अल्लाह ताला 65,000 उसको एक आयत पढ़ने का सवाब अता फरमाता है और 65,000 उसके गुनाह माफ और 65,000 उसके दराजात बुलंद कर दिए जाते हैं। ये माह रमजान की बरकत है, माह रमजान का फैजान है, माह रमजान की अहमियत है जो बंदे मोमिन आज महसूस कर रहे हैं और इंशाअल्लाह करते चले जाएंगे और माह रमजान को हम अपनी जिंदगी में शामिल करते चले जाएंगे। अरे वो बड़े खुशनसीब है। एक हदीस पाक में है किसी साहबी रसूल ने आका से पूछा या रसूल अल्लाह, अब ये जो कुरान पढ़ते हैं इनको कुरान पढ़ने का सवाब मिल जाता है, हम कुरान नहीं पढ़े हुए हम सुनते हैं, हमारे लिए भी कोई है? तो हुजूर ने इरशाद फरमाया अरे नादिम होने की वजह क्या है, हम कुरान पढ़े हुए नहीं, अगर कुरान हम पढ़े होते हमें भी सवाब मिल जाता, हम सुन सकते हैं। तो आका ने इरशाद फरमाया आप कुरान को अच्छे से दिल लगी के साथ सुन लिया करो, जितना सवाब पढ़ने वाले को है इतना सवाब सुनने वाले को मिल जाता है। अरे तो यही तो वजह है, आप लोग फायदे में रमजान में जाते हैं, कुरान का हाफिज वो पढ़ता है, जितना उसको मिलता है उससे कहीं दूना तुमको भी मिलता चला जाता है। फजीलत के एतबार से कई हदीसें मेरे जहन में आ रही है लेकिन बात लंबी हो जाती है। अरे जितना कुरान पढ़ने वाला रमजान के महीने में पढ़ता है उतना सवाब सुनने वाले को मिलता है, लेकिन वो बदकिस्मत लोग हो जाते हैं, मारूम हो जाते हैं जो माह रमजान अधूरा छोड़ के जाते। 15 पारे सुन लिए, फिर 15 को जो है वो अपने घर में गुजार देता है, 15 ऊपर चलता रहता है। ये माह रमजान एक ऐसा महीना है जिसमें हर बंदे मोमिन को पूरा कुरान सुनने की सआदत हासिल हो जाती है और एक एक हर्फ, एक एक जबर जेर पेश, एक एक हर्फ, एक एक आयत, एक एक रुकू, एक एक पारा सब सुनने को मिल जाता है।
اور ذرہ برابر بھی لغزش نہیں ہو پاتی، اگر ہوتی بھی ہے تو اللہ فضل فرما دیتا ہے، صحیح ہو جاتی ہے۔ یہ قرآن ماہ رمضان میں اس کی برکتیں دی جاتی ہیں خصوصی طور پر۔ تو لوگوں یاد رکھو، ماہ رمضان کی اہمیت کو جانو۔ ابھی 8 دن بعد ماہ رمضان آنے والا ہے، اور یہ ماہ رمضان اپنی برکتیں، اپنی رفعتیں، اپنی شوکتیں، اپنی عظمتیں لے کر کے آئے گا۔ اس لیے میرے آقا نے ایک جگہ ارشاد فرمایا، اس کی ناک آلود ہو جسے ماہ رمضان تو حاصل ہوا لیکن ماہ رمضان کے فیضان سے محروم رہا، ماہ رمضان کے روزے نہ رکھ سکا، ماہ رمضان میں عبادتیں نہ کر سکا، ماہ رمضان میں اپنی مغفرت نہ کرا سکا، ماہ رمضان میں رحمت سے مالا مال نہ ہو سکا، ماہ رمضان میں جہنم سے آزادی کا پروانہ نہ لے سکا، اس شخص کی ناک آلود ہے۔ اللہ اکبر۔ ماہ رمضان کی اہمیت کو جانے، اور ماہ رمضان کے مہینے میں اس لیے روزے کی جو ہے 3 قسمیں بیان کی جاتی ہیں۔ ایک ماہ رمضان میں وہ روزہ جو عام لوگ روزہ رکھتے ہیں، اس کو روزے شریعت بھی کہا جاتا ہے۔ روزے کی 3 قسمیں ہوتی ہیں۔ ایک عام روزہ، عام طریقے سے اس کی تعریف یہی ہے باشرا، روزے کی نیت کر کے صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک کھانے پینے اور جماع سے رکنے کا نام روزہ ہے۔ یہ روزے کی تعریف۔ لیکن خاص روزہ کھانے پینے اور جماع سے رکنے، آنکھ، کان، زبان اور اعضائے بدن کو گناہ سے روکنے کا نام روزہ ہے۔ اور خواص الخواص ایک روزہ یہ جو صرف دنیا کو چھوڑتا ہے اور اللہ کی طرف لگ جاتا ہے، نہ سننا چاہتا، دنیا والوں کی کوئی بات سننا ہی نہیں چاہتا، نہ دیکھنا چاہتا، نہ سنانا چاہتا، صرف اللہ کے لیے روزہ رکھ رہا ہے۔ چھوڑ دیا، جنگل پسند کر لیا، گھاٹیاں پسند کر لی، بستی کو چھوڑ دیا، صرف ذکر الہی روزہ ہے، ذکر الہی روزہ ہے، ذکر الہی روزہ ہے۔ اس کو بولتے خاص روزہ دار۔ ایک ہے خاص روزہ، ناک، کان، ہاتھ، پیر، یہ تمام کو گناہوں سے باز رکھنے کا نام روزہ۔ ایک کھانے پینے اور جماع سے رکنے کا نام روزہ، اس کی قید صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اے ایمان والو تم پر روزے فرض کر دیے گئے، کما کتب علی الذین من قبلکم، جیسے کہ تم سے پہلے لوگوں پر روزے فرض کیے گئے تھے، لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ پرہیزگاری یہ عام منزل نہیں ہے، یہ بڑی اہم منزل ہے۔ تقویٰ، پرہیزگاری یہ ایسے ہی ہلکا پھلکا لفظ نہیں ہے، بلکہ یہ اللہ تعالیٰ کے خاص بندوں کو حاصل ہوتا ہے، جو تقرب الہی کی طرف جاتے ہیں، جو دنیا کی رنگ رنگیلیوں سے محفوظ رہتے ہیں، انہی کو پرہیزگاری حاصل ہوتی ہے۔ روزہ رکھنے کا مقصد صرف پرہیزگاری ہے، اس سے حاصل کیا ہوتا ہے؟ پرہیزگاری، تقویٰ، قرب الہی۔ اس قرآن مجید کی آیت کریمہ سے یہ بات بھی معلوم ہوتی ہے کہ صرف حضور کی امت پر ہی روزہ فرض نہیں ہے، بلکہ پچھلی امتوں پر بھی روزہ فرض رہا ہے۔ حضرت آدم سے لے کر حضرت عیسیٰ روح اللہ تک ہر امت میں روزہ فرض رہا ہے، دن اور احکام مختلف رہے ہیں، دن اور احکام شریعت ان امتوں میں مختلف رہے، لیکن روزہ سب پر فرض رہا۔ کسی پر عاشورے کا روزہ فرض رہا، تو کسی پر
चांद की 13, 14, 15 तारीख का रोजा फर्ज रहा। किसी पर एक दिन अफ्तारी तो एक दिन सहरी, दाऊद अलैहिस्सलाम की उम्मत पर। तो रोजा फर्ज रहा है पिछली उम्मतों पर भी, लेकिन अल्लाह का फजल देखो, इस उम्मत को महरूम नहीं रखा हुजूर की, इसे पूरे महीने का रोजा फर्ज करार दिया गया। एक महीने का रोजा, पूरा एक महीने का रोजा। और रोजे की अहमियत, अल्लाहु अकबर, इसको फर्ज करार दे दिया गया है। और यह शव्वाल की 10 तारीख 2 हिजरी को रमजान के रोजे फर्ज हुए। कब हुए? 10 शाबान अल मुअज्जम को, और 2 हिजरी को, 2 हिजरी यानी 1450 वर्ष के करीब हो गया। ये माह रमजान के रोजे फर्ज करार दिए गए और ये कयामत तक रोजे फर्ज रहेंगे। नमाज जिस तरीके से तमाम पर फर्ज है, ऐसे ही रमजान के रोजे भी तमाम लोगों पर फर्ज है। जन्नत में जाने के लिए जैसे नमाज पढ़ना लाजमी है, ऐसे ही जन्नत में जाने के लिए रोजा रखना भी लाजमी है। इस्लाम की बुनियादें 5 है, उसमें से दूसरी बुनियाद जो है वो रोजा है। इसको भी ईमान और यकीन के साथ अमल में लाना है। अगर बंदे मोमिन नहीं लाया तो उसकी दुनिया और आखिरत की बर्बादी उसके सामने होगी। इसलिए जरूरी है कि हमें माह रमजान की कदर करनी है, इसके फैदान से माला माल होना है और रमजान के महीने की रोजे की नियत करनी है, रखने की, और कुरान भी सुनना है और रमजान के महीने में तरावियों की भी पाबंदी करनी है। यही है बंदे मोमिन की पहचान। अल्लाह